Oh, very good morning to all of you. This is Abhilasha, your political science teacher. Under the subject social science. So, class, today we all are going to start our new chapter of your book, chapter number 3, Electoral Politics. Electoral politics. What do you mean by the term electoral politics? Electoral. I believe you have like basic idea of elections. What are elections? It is the system through which we choose our representative. Okay, this is the system of voting through which we choose our representative. Okay, so we will basically talk about the election system, what are elections, why elections are necessary, and how we choose our representative, etc. in this chapter. Okay, so now your question arises, why elections? Why there is a huge need to conduct elections, or why there is a need to have elections? Okay, so in chapter democracy, what we discussed that democracy is not possible, or neither possible nor necessary for people to govern directly. So the most common form of democracy in our times is for the people to govern through their representatives. Okay, obviously, we all are living in a democracy. Okay, we live in a democratic country, and and in democracy, people are the main government. They choose their representative, and it is not possible that people take all the decisions in every matter. They took the decisions. Instead of it, their decisions are taken by the representatives they choose. So this system, how they choose their representative, they elect their representative. Okay, so now in this chapter, why elections are necessary, we try to understand how electoral competition among parties serves the people. Okay, so now why elections? So as you all know, इन अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ठीक है, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, ठीक है, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा के स्टेट असेंबली इलेक्शन के टाइम की एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट आई है 1987 की. अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट. An expectant crowd sitting for the past 5 hours in a chalk of the town is waiting for its leader to come. The organizers assured and reassured the crowd that he would be here any moment. The crowd stands up whenever a passing vehicle comes that way. It arouses hopes that he has come. The leader is Mr. Devilal, chief of the Haryana Sangharsh Samiti, who was to address a meeting in Karnal on Thursday night. The 76-year-old leader is a very busy man these days. His day starts at 8 a.m. and ends after 11 p.m. He had already addressed 9 election meetings since morning, been constantly addressing public meetings for the past 23 months and preparing for this elections. Now, state assembly elections in Haryana, the picture you are looking at, okay, this is the picture of Mr. Devila. Okay, this is the news report of state assembly elections in Haryana in the year 1987. ठीक है, रात का टाइम था, बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, they were waiting they were waiting for their leader. उनके लीडर कौन थे, मिस्टर देवीलाल थे. ठीक है, 5 घंटे से बैठे हुए थे. जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो बार बार उनको अश्योर कर रहे थे, रीअश्योर कर रहे थे कि मिस्टर देवीलाल कभी भी किसी भी टाइम पे यहाँ पे आ सकते हैं. तो जैसे ही क्राउड को लगता, कोई भी गाड़ी आ रही होती, या क्राउड को लगता कि ये बस आ गए हैं, तो वो क्या करते, वो खड़े हो जाते. सो इट अराउजेस होप्स दैट ही हैज कम. ठीक है, उनको लगा कि वो आने वाले हैं. जो मिस्टर देवीलाल है वो क्या थे, हरियाणा संघर्ष समिति के हरियाणा संघर्ष समिति के लीडर थे. और उन्होंने करनाल को, ठीक है, उनको क्या करना था, करनाल को थर्सडे नाइट को एड्रेस करना था. जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वगैरह में, मीडिया में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, इलेक्शन के टाइम पे जो लीडर होते हैं नॉर्मली जगह जगह जाते हैं, प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं, एंड दे like they
एड्रेस द मीटिंग, ठीक है, वो स्पीचेस देते हैं, ठीक है। जो देवीलाल जी थे वो 76 इयर्स के थे, ठीक है, ओल्ड लीडर थे, बहुत बिजी थे। 8 बजे से उनका डे स्टार्ट होता था, रात को 11 बजे तक उनकी मीटिंग्स चलती रहती थी। सो ऑलरेडी सुबह से उन्होंने 9 इलेक्शन मीटिंग्स को जो है एड्रेस कर चुके थे, और कॉन्स्टेंटली वो क्या कर रहे जा रहे थे, पास्ट 23 मंथ्स मतलब पिछले 2 साल से वो बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स में एड्रेस कर रहे थे, इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है। तो ये एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। सो नाउ the state had been ruled by a led कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा स्टेट जो है कॉन्टिन्यूसली कांग्रेस पार्टी लेड कर रही थी 1982 से। जो चौधरी देवीलाल थे, जिसकी पिक्चर अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी, चौधरी देवीलाल अपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी लोकदल। जो चौधरी देवीलाल थे वो ऑपोजिशन में लीडर थे। जैसे कि अभी हम एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि जो अभी मैं बीजेपी और कांग्रेस का नाम लूंगी इंडिया में, क्योंकि इससे हमें जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी बेटर हो पाएगी। जैसे बीजेपी अभी मेजोरिटी में है और उनके अपोजिशन में कौन है, कांग्रेस है, और भी बहुत सारी पार्टीज है। तो जस्ट लाइक दैट चौधरी देवीलाल जो थे, जिनकी लोकदल पार्टी थी, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई लोकदल। वो ऑपोजिशन के लीडर थे और उन्होंने एक मूवमेंट चलाया। मूवमेंट का क्या नाम था, न्याय युद्ध। न्याय मतलब जस्टिस, युद्ध मतलब फाइट, मतलब कि जस्टिस फाइट, जस्टिस फॉर फाइट, दिस इज द मूवमेंट ही लेड। So in the election campaign, Devilal promises to waive the loans of farmers and small businessmen. एक इलेक्शन कैंपेन चल रहा था और इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे देवीलाल ने क्या प्रॉमिस किया कि जितने भी फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसेस के जो लोन्स हैं, मैं उन सबको क्या कर दूंगा, वेव ऑफ कर दूंगा। वेव ऑफ कर दूंगा मतलब कि मैं माफ कर दूंगा। The people were unhappy with the existing government and attracted by Devilal's promise. जो लोग थे काफी बिल्कुल भी खुश नहीं थे जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी उससे, और उनके जो देवीलाल जी के जो प्रोमिसेस थे कि मैं लोन्स को क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा, स्मॉल बिजनेसमैन फार्मर्स के लोन्स को माफ कर दूंगा, तो काफी अट्रैक्ट हो चुके थे उनके प्रॉमिस से। और इसी वजह से और क्या हुआ था, विक्ट्री ऑफ लोक दल पार्टी 1987 का जो ये इलेक्शन था, ठीक है, इसमें इसमें क्या हुआ, लोकदल पार्टी की जीत हुई थी। So the newly elected members of legislative assemblies of Lokdal chose Devilal as their leader. As you all know कि हम जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हम अपने एमएलए स्टेट के लिए हम एमएलए को चूज करते हैं, और जब हमारा नेशनल लेवल पे जब इलेक्शन होता है तो हम अपने एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करते हैं। जब स्टेट का इलेक्शन होता है तो हम एमएलए चूज कर रहे हैं, तो एमएलए मिलके क्या करते हैं, एमएलए अपने चीफ मिनिस्टर को चूज करते हैं, अपने लीडर को चूज करते हैं। जस्ट लाइक दैट जब एमपीज को हम इलेक्ट कर लेते हैं, एमपीज चूज कर लेते हैं, तो सारे एमपीज मिलके अपने लीडर, अपने प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट जितने भी मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, जो एमएलए थे लोकदल पार्टी के, उन्होंने देवीलाल जी को क्या किया, अपना लीडर चूज किया। द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। अब शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर दिलाते ना स्टेट में, तो गवर्नर ने देवीलाल जी को बुलाया एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर। As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small businessmen. जैसे ही चीफ देवीलाल जी चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक गवर्नमेंट इशू उनकी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया। क्या इशू किया कि जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, इन सब के जितने भी लोन्स हैं, आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं, उनको क्या कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। सो हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 इयर्स। 4 इयर्स तक उनकी पार्टी ने जो है रूल किया। In next election 1991 the Congress won the election and formed the government. But 1991 में फिर से क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था और कांग्रेस ने फिर से इलेक्शन को जीत लिया था, ठीक है। So now why do we need elections? So why there is a huge need of election? हमें जरूरत क्यों पड़ती है इलेक्शंस की?
ठीक है। सो नाउ इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। सपोज इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे क्या है, इलेक्शंस ही नहीं हो रहा है, कोई भी आ रहा है और हमारा रिप्रेजेंटेटिव अपने आप ही बन रहा है और अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहा है, तो वो क्या डेमोक्रेसी सच में कहलाएगी? नहीं कहलाएगी ना। सो in most democracy people ruled through representatives. Why? Mostly democracies में जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या करते हैं, वो उनके लिए डिसीजंस लेते हैं। Why? सपोज इमेजिन अ सिचुएशन, यू गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना है, ठीक है। तो अगर वो लोगों का सपोज डिसीजन लेना है कि गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन समझ लो कि एग्जाम्स कब होंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्स कब होंगे। अगर गवर्नमेंट हम हर एक इंसान से, हर एक पर्सन से पूछेगी, उनका वोट लेगी कि नहीं नवंबर में एग्जाम होने चाहिए, नहीं या दिसंबर में होने चाहिए, मार्च में होने चाहिए, उन्होंने क्या कर दिया कि हम ना इलेक्शन हम वोटिंग कर लेते हैं। तो सपोज करो 135 करोड़ 135 करोड़ की अपनी इंडिया की पॉपुलेशन है, तो वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी में नॉर्मली जो पीपल रूल करते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करते हैं, ठीक है। सॉरी, is there a democratic way of selecting representative without election? And now the question arises, ठीक है, elections के through हम अपने representative, we are choosing our representative, so now there is any other way through which we are selecting our representative without election? So now let us think a place where representatives are selected on the basis of age and experience. ठीक है, मान लो कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनको एज के अकॉर्डिंग या फिर उनको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, उनको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। सो वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं एजुकेशन या नॉलेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पर क्या हम उस चीज को सच में डेमोक्रेसी करेंगे? आजकल नॉर्मली क्या होता है, बहुत बार कोई भी फर्जी डिग्री, तो फेक डिग्री कोई भी लेके आ जाएगा और फिर वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। कोई जरूरी है क्या लोगों को खुश करने के लिए आपके पास कोई डिग्री का होना जरूरी है? ठीक है, लोगों को समझने के लिए। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, मेनली हमें पीपल की थिंकिंग, पीपल को समझना, उनको अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है। तो एज या एक्सपीरियंस या फिर एजुकेशन बेसिस पे अगर हम करते हैं तो उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? हमें कैसे पता चलेगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एजुकेशन और नॉलेज के बेसिस पे जिसको हमने रिप्रेजेंटेटिव बना लिया, उसको लोग सीरियसली पसंद कर भी रहे हैं, लाइक कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? हाउ डू वी हाउ डू वी इंश्योर दिस, कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों के विशेस पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज दे आर नॉट कैंपेनिंग लीडर्स, रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं, वो कोई कैंपेनिंग ही नहीं कर रहे हैं बस, तो लोगों की विशेस के बारे में भी उसे नहीं पता चलेगा जो रिप्रेजेंटेटिव, अगर हम एजुकेशन के बेसिस पे या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे करते हैं। तो हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु the people don't like do not remain their representative? हमें कैसे श्योरिटी मिलेगी कि जिससे लोग, जिन पर्सन्स को कोई रिप्रेजेंटेटिव पसंद नहीं आया है, तो वो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव रह रहा है नहीं रह रहा है? how do we get to know all about this? ठीक है, so a mechanism, or you can say a process by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so, this mechanism is called elections. एक ऐसा process जिससे कि लोग क्या करते हैं, अपने representatives को, ठीक है, अपने leader को, अपने representative को choose करते हैं at regular intervals. This is an important term, regular interval. Elections, इंडिया में इलेक्शन आफ्टर 5 years होते हैं, हर 5 साल के बाद इलेक्शन एक इंटरवल के बाद होता है। तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, एंड उनको चेंज भी कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं, और इसी मैकेनिज्म को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन कहते हैं। सो therefore elections are considered essential in our times for any representative democracy. कोई भी representative democracy है तो वहाँ पे elections का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। So now our
Yes. So in an election, the voters make many choices. They can choose who will make laws for them. ठीक है, क्या कर सकते हैं, उनके लिए लॉ कौन बनाएंगे. They can choose who will form the government and take major decision. गवर्नमेंट कौन बनाएगा, जितने भी मेजर डिसीजंस है वो कौन लेगा. They can choose the party whose policy will guide the government and law making. वो एक पार्टी को चूज कर सकते हैं जिनकी पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट को गाइड करेगी, लॉ बनाने में हेल्प करेगी. ठीक है, तो इलेक्शंस में वोटर्स के पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं और उस चॉइसेस के अकॉर्डिंग वो डिसीजंस लेते हैं. ओके. So what makes an election democratic? Now question arises, ऐसे क्या तरीके हैं जिससे कि जो इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शंस जो है डेमोक्रेटिक बनते हैं. क्या व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक? सो द मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, कुछ मिनिमम इलेक्शन चॉइसेस होती हैं, मिनिमम कंडीशंस होती हैं. क्या क्या है? Everyone should be able to choose. Everyone should be able to choose means, this means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. ऐसा नहीं है कि वो रिच पर्सन है तो उसका जो वोटिंग है उसके पास 2 वोटिंग है, या फिर वो प्राइम मिनिस्टर है तो उनके पास 2 वोटिंग है, 5 वोटिंग है, 10 वोटिंग है. ऐसा नहीं होता है. इट मीन्स कि सबके पास एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल वैल्यू होनी चाहिए. 1 vote equals to 1 value. And in India, we have like adult age, universal adult suffrage, and 18 years जो है eligible age है as a voter. So this means that everyone should have 1 vote and every vote should have equal value. 1 vote equals to 1 value. Okay. There should be something to choose from. कुछ होना चाहिए ना. अब आपको मैंने बोल दिया कि ठीक है तुमको जो खाना है खा लो, और मैंने बस तुम्हारे पास ऑप्शन दे दिया खाली ये एक बोल के अंदर मैंने सपोज आपके लिए राइस रख दिया. ठीक है, और मैंने बोल दिया तुम्हें जो खाना है खा लो. ठीक है, तो अब तुम्हारे पास चॉइसेस तो है ही नहीं ना. तुम्हारे पास तो बस बोल, एक बोल है राइस का, राइस बोल फुल ऑफ राइस. तो चॉइसेस भी तो होनी चाहिए. So parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choices to the voters. तो पार्टीज और कैंडिडेट्स जो है उनके पास ये राइट है कि वो इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकते हैं. इवन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, हैव दिस राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन. जो 20 उनके एक मिनिमम एज होती है 25 इयर्स होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, उसके बाद यू कैन कंटेस्ट इलेक्शन. आप जिससे वोटर्स को आप क्या कर सकते हो, चॉइसेस दे सकते हो. The choice should be offered at regular intervals. ठीक है, हर एक कुछ सालों में क्या है चॉइसेस को, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू इयर्स. कि हर, जैसे इंडिया में जो इलेक्शन है वो हर 5 साल में होता है, तो ये चॉइस जो है एक रेगुलर इंटरवल्स में हमें देनी चाहिए. The candidates preferred by the people should get elected. जो भी कैंडिडेट लोगों ने प्रेफर किया है, वोटिंग की है, उसी को क्या करना चाहिए, इलेक्ट करना चाहिए. The election should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish. जो elections हैं वो आपके freely होने चाहिए, fairly होने चाहिए. कोई उसमें corruption वगैरह है या फिर आप unfairness या partiality नहीं होनी चाहिए. लोग जिसे पसंद करते हैं, the people can choose as they really wish. Whoever they wish to be their leader, their representative, they can choose them. ठीक है, freely and fairly. So these are the minimum conditions which makes elections democratic. क्या है एक बार recall करते हैं. Everyone should be able to choose. Everyone should be able to choose. There should be something to choose from. There should be something to choose from. कुछ होना चाहिए जिससे कि पार्टीज होनी चाहिए, कैंडिडेट्स होने चाहिए, चॉइसेस होनी चाहिए लोगों के सामने. The choices should be offered at regular intervals. At a रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पे आपको चॉइसेस मिलनी चाहिए, वोटर्स को चॉइसेस मिलनी चाहिए जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, अपने लीडर को चूज कर सकते हैं. द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. जो भी कैंडिडेट जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. जिसे पसंद कर रहे हैं, जिसे प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसको इलेक्ट करना चाहिए.
Election should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish. इलेक्शंस जो है फ्रीली और फेयरली कंडक्ट होने चाहिए, जिससे कि लोग जो है जो चाहते हैं उनकी जो चॉइसेस है उसके अकॉर्डिंग वो अपने लीडर को चूज कर सके. ओके, so now is it good to have political competition? क्या political competition होना अच्छी बात है? So elections हो रहे हैं मतलब political competition है. So at the constituency level it takes the constituency means चुनाव क्षेत्र, एक एरिया होता है जहाँ उस एरिया के बीच में क्या होता है, उस एरिया का हमने एक लीडर चूज कर लिया. सपोज बीकानेर में जेएनबी है, ठीक है, जेएनबी एक एरिया है, जेएनबी के लीडर को चूज कर लिया, तो वो हो गया कॉन्स्टिट्युएंसी, ठीक है, चुनाव क्षेत्र. So at the constituency level, it takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, election will become pointless. Obviously, um, एक कंपटीशन होना चाहिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स होने चाहिए. अगर चॉइसेस नहीं है, कैंडिडेट्स ही नहीं है, तो इलेक्शंस का तो कोई मतलब ही नहीं है ना. कि अब फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में है ना, हेड बॉय और हेड गर्ल का जो है इलेक्शन हो रहा है, बट हेड बॉय और हेड गर्ल दोनों के लिए ही एक एक ही कैंडिडेट आया है, तो वहां पे फिर इलेक्शन, आप लोगों के पास तो चॉइस ही नहीं है कि आप किसको चूज करोगे कि हम अपने हेड बॉय या हेड गर्ल इसे बनाना चाहते हैं, बट आपके पास तो चॉइस ही नहीं है, एक ही पर्सन है, वो आप उसी को थोड़ी ना उसी से उसी को ऑब्वियसली वो उसी के पास वोटिंग रहेगी, कोई कंपटीशन नहीं है, तो ऐसा इलेक्शन तो पॉइंटलेस हो जाता है ना. तो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल में इलेक्शंस का होना जरूरी है, ठीक है. An electoral competition has many demerits. Obviously, कुछ demerits भी है. क्या-क्या demerits हैं? It creates a sense of disunity and factionalism in every locality. एक disunity, ठीक है, हर एक लोकेलिटी में एक डिसयूनिटी हो जाती है. फैक्शनलिज्म का मतलब कि फैक्शनलिज्म का मतलब लोग सेपरेट अपनी है ना, सेपरेट ग्रुप्स बना के रहने लग जाते हैं. और वो जैसे इंडिया में कुछ लोग क्या करते हैं, हम बीजेपी के फेवर में, कुछ लोग बोलते हैं हम आम आदमी पार्टी के फेवर में, कुछ लोग बोलते हैं हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के फेवर में. तो जब आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जब मिसमैच करते हैं, तो इससे एक डिसयूनिटी आता है. आप बोलते कि नहीं तुम तो उस पार्टी के हो, ठीक है, या फिर नहीं हम तो इस पार्टी को देंगे, तो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी. एक यूनिटी, एकता की फीलिंग नहीं रहती है, एक सेग्रीगेशन आता है, फैक्शनलिज्म आता है सोसाइटी में. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स often level allegations against one another. ठीक है, अब क्या होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, एक दूसरे पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, बहुत अलग अलग लेवल्स पे. बहुत कभी कभी वो जो एलिगेशंस होते हैं वो सही भी नहीं होते हैं. Parties and candidates often use dirty tricks to win elections. बहुत से dirty tricks play करते हैं, ठीक है. dirty tricks मतलब कि पॉलिटिक्स खेलते हैं. पॉलिटिक्स मतलब कि यू कैन से कि फ्रॉड करते हैं, करप्शन करते हैं, ठीक है. यू कैन से वोट्स को परचेज करते हैं, ठीक है, और पैसे दे पुअर्स को पैसे दे देते हैं और बोलते हैं कि हम आप वोट, और उनसे वोट लेते हैं. तो पार्टीज और कैंडिडेट्स बहुत बार क्या करते हैं, ऐसे डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं जिससे कि वो इलेक्शंस जीत सके. Some people say that this pressure to win electoral fight does not allow sensible long-term policies to be formulated. Yes, this is very important. बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पॉलिटिक्स की वजह से, इलेक्टोरल फाइट्स की वजह से, इलेक्शन फाइट्स की वजह से क्या होता है, कोई भी हमारे पास लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं आ पाती है, फॉर्म नहीं हो पाती है. जैसे कि हमेशा पार्टीज तो एक लिमिटेड टेन्योर के लिए आती है ना, 5 इयर्स के लिए आती है, और उस 5 ईयर में क्या होता है कि वो छोटी छोटी पॉलिसीज लेके आते हैं जो स्मॉल टर्म में बेनिफिट होती है, पर लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट नहीं करती है. तो लोग जो देखते हैं उसी चीज को क्या कर देते हैं कि जैसे कि सपोज कोई पॉलिसी आई है आज, ठीक है, वो अभी हमें कोई फायदा नहीं कर रही है, प्रॉफिट नहीं दे रही है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, सर्टेन टाइम वो हमारे लिए बेनिफिट होगी, बेनिफिट करेगी. तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो है बहुत ही, हमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि फॉर्म नहीं हो पाती due to the electoral fights. Okay class, so now class, this is all about today. Go through this chapter,
read the chapter very carefully, and if you have any kind of query or doubt, you can ask me tomorrow. Okay, this is all about today. Thank you so much. Bye bye, take care.